वही चीज़ का मैंने मेरा फर्स्ट स्टार्टअप किया फ्रॉम द नेम ऑफ तोमर टेक एंड इट फेल्ड, बट दैट इज़ व्हाट हैज़ लेड मी टू टुडे. सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ अ होल प्रोसेस वहाँ तक पहुँचने की. तो अगर वो सक्सेस है तो एवरी स्टेप इन दैट प्रोसेस इज अ प्रोग्रेस एंड दैट प्रोसेस इज अ सक्सेस. तो इवन इफ इट फेल्स, you have succeeded. Here in Vadodara, we're in the headquarters of Motion Automotives, and we have Mr. Anantraj with us, who I guess prefers himself to be called as Anant. Right. Right? So, thank you, Anant, for having us here. Like, let's just jump right into the podcast, and I wanted to understand your journey of starting this whole startup from your school days. I mean, obviously you didn't start it then, but what was your background and how was your journey in the school and what led you to this startup? So like, can you tell me about your whole background? Right. So the journey from the very early days to today, where I am a founder and COO and also the CTO of Motion Automotive. So it all started, I believe that there is nothing like a eureka moment in any founder's life. It's always like a process that we have all been gone through. तो जब से हम लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आई वॉज अ वेरी क्यूरियस किड जो पहले से कुछ ना कुछ तोड़ने मरोड़ने में बिलीव करता था, कम जोड़ने में लेकिन ज़्यादा तोड़ने में. रैंचो जैसा. डेफिनेटली. तो लेकिन उस टाइम पे क्या था, इट वॉज जस्ट वॉट एवर यू कैन गेट हैंड्स टू, राइट. और हम स्टार्ट कमिंग फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, ज़्यादा चीज़ें नहीं थी उतनी चीज़ों को लेने, बट आई वॉज वेरी curious and excited about the automotive field from the very beginning and also about the aerospace industry. तो जब स्कूल में थे 7-8 स्टैंडर्ड जैसा, तो आई वॉज मोस्ट ऑफ व्हेन पीटी के क्लास में लोग जब खेल रहे हैं एंड बिकॉज लॉट इंडिया है एंड एवरीबडी प्लेज क्रिकेट, आई यूज्ड टू लाइक फुटबॉल. तो बट क्योंकि पता है ना एक पॉलिटिक्स होता है स्कूल के अंदर पे, ओनली अ फ्यू किड्स गेट द बैट एंड बॉल एंड रेस्ट ऑफ द फील्डिंग्स. मुझे नहीं करना था वो. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू सिट ऑन अ स्टेयरकेस एंड यूज्ड टू ब्रेनस्टॉर्म विद माई सेल्फ और एनीवन हूम आई कैन टॉक टू. तो हम लोग मैं ब्रेनस्टॉर्म करता रहता था कि भाई ये चीज़ ऐसे बनाएंगे, ऐसे चीज़ बन सकती है, ऐसा बन सकती है, फ्रॉम वॉट एवर आई कैन वॉक माई head around. So like thinking of creating games, to creating a car, to creating a go-kart, whatever. You were curious of how the world works. Yeah, and exactly. क्या चीज़ change या tweak कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. Definitely. I would, that point of time I was very because I was fond of watching TV at that point of time, because I used to watch Discovery and Jetix channel that was there. I used to like used to see this Galactic Football, and these are my very favorite shows. So whenever we were in school, so it was like यार ये मिस हो गया. So at that time also I was thinking क्या हो अगर हाथ में ऐसा TV जैसा आ जाए, and what we today call smart watches. Right, so I was like क्या कैसे एक सेटअप बॉक्स को इतना छोटा करके यहाँ पे लगाएंगे. That point of time it was just thinking on things. Nobody knew कि हाँ कुछ सालों बाद ये चीज़ actually हाथ में हो रही होगी. But it was like very fascinating. I was thinking हाँ ऐसा कुछ होगा तो कितनी मज़ा आएगी. And while today when I see these things happening, I feel like सोच तो सही रहे थे हम. तो बस वही सोच चल रही थी उस टाइम. मेरे सब सोच जिससे बता पाता था उनको बताते थे, नहीं तो खुद के अंदर ही. आई यूज्ड टू ड्रॉ स्केचेस अबाउट दैट. आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ स्केचिंग आल्सो. एक्चुअली फ्रॉम अ वेरी बिगिनिंग आई हैव बीन अ वेरी वर्सेटाइल किड. आई यूज्ड टू डू एक्टिंग एट स्कूल, आई यूज्ड टू डू कोरियोग्राफी एंड डांस एट स्कूल. Okay. I used to do sketching and painting at school. Even today I also do sketching. I used to get paid for sketching also. Okay. So I used to do paid portraits for people. Then I also used to I also play guitar and sing a bit. Very bad, but I do. And just like that. And I love engineering and science. I used to read books that way. And also I like running. Running is one of the things that keeps me calm. So you were quite engaged in the school time Yes, also. definitely, a lot. And उस time से ही the science was the thing कि जब चाहिए where heart speaks, right? और ऐसा था कि there was one of these moments जब ऐसा हुआ कि नहीं अब कुछ करना है, right? तो क्या था कि एक बार हमारे स्कूल में our principal Mr. Bhagesh Thakur, I am from Vidyut Board Vidyalaya English medium. So our principal Mr. Bhagesh sir in like assembly on Wednesdays, he used to always give a speech and felicitate students who have done something good. So उस टाइम पे कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कराटे में बहुत नेशनल लेवल या कुछ जाके आए, तो उनको बुलाते थे आगे, उनको सर्टिफिकेट देते थे एंड ताली बजाते. उस टाइम पे आई रिमेंबर दैट आई वाज लेट एट स्कूल. सो आवर वैन ब्रोक डाउन एंड हम लोग असेंबली में एकदम लास्ट में बैठे थे. तो आफ्टर दैट सर फेलिसिटेट भागेश सर गेव अ स्पीच और उनमें बोला उनने कि
ऐसा कुछ करो कि जैसे आप बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इनके लिए ताली बजाए, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ऐसा कुछ करो कि आपके लिए लोग तालियां बजाए। ऐसा आई डोंट नो हाउ मच इट राइट स्टेटमेंट हिट टू द पीपल इन द फ्रंट रो। आई वॉज इन द लास्ट बट इट हिट मी अ लॉट। क्या बात, क्या ना, मुझे तो चाहिए। एंड इवेंचुअली टिल 9th इट वॉज लाइक आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन साइंस, बट ऐसा था कि मुझे कोई रिकग्नाइज नहीं करा है। टिल देन इट वॉज ऑल अबाउट भाई अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, अच्छा डांस कर लेता है, अच्छा ये कर रहा है, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। आई वॉज लाइक यार मेरे को इतना साइंस पसंद है, किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। एंड देन 9th में हमारे क्लास में बोला दिवाली वैकेशन के टाइम पे यू कैन मेक वॉट एवर यू लाइक। सो आई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट क्या ड्रोन बनाया जाए। एट दैट पॉइंट वी यूज्ड टू टॉक 9th में। सो देन एट दैट पॉइंट वी वर लाइक, इसको हम लोग क्वाडकॉप्टर बोलते थे। अच्छा 9th में पहले ड्रोन्स और ये सब आज के टाइम जैसा नहीं था वो। इट वाज लाइक वेरी स्टार्ट, इट वाज बिफोर 3 Idiots। ओके सो उस टाइम पे वो इंस्पिरेशन थी फ्रॉम द एवेंजर्स मूवी, ओके वेयर देयर इज दिस हेलिकैरियर, इट हैज 4 फैंस एंड दैट। सो आई वाज लाइक चलो ये बनाते हैं। मी एंड माय फ्रेंड स्टार्टेड बिल्डिंग दैट फ्रॉम अ कार्डबोर्ड एंड ब्रोकन रिमोट कंट्रोल कार एंड वी ट्राइड टू मेक दैट। इट डिडंट फ्लाई बट इट डिड होवर अ बिट। तो अच्छा 9th में, एंड लाइक ऑल योर फ्रेंड्स वर आल्सो इन 9th and you guys just So me and one of my friend, we went into this and tried to do this with cardboard and whatnot, whatever we get our hands to। टूटी हुई रिमोट कंट्रोल कार ले लिया, उसको जोड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उसमें RF से ऐसे कर रहे हैं। It did not fly obviously, but ऐसा ऐसा होवर करके ऐसे बैठ जाता था। तो I was embarrassed by that कि भाई ऐसा ये तो चल नहीं रहा है तो क्या दिखाने का। So after the vacation I went to the school और सर ने बोला कि क्या किया। मैंने कहा सर छोड़ो ना नहीं बताना। तो बोले नहीं क्या बता सर, वी ट्राई टू मेक अ ड्रोन बट इट डिड नॉट वर्क। तो सब लोग एक्चुअली एक्साइटेड थे कि ये लोग ड्रोन बनाए। स्कूल में क्या वो लिंचिंग हो जाती है फिर कि ये तो क्या कुछ भी बोलता रहता है, चला तो नहीं दे रहा। बट वी डिड नॉट शेयर, दैट्स व्हाई। और उस टाइम पे आई वाज अ किड हु वाज अ बुलीड अ लॉट। मैं बहुत बुलीड होता था बिकॉज आई वाज स्किनियर देन दिस। तो बिगर स्टूडेंट्स यूज्ड टू बुली ऑन मी। ऐसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर कोई भी उनके लाइफ में वो क्या एक्शन लेते हैं स्कूल में या फिर क्या चीज़ लाइक एक्शन में क्रिएट करते हैं, उस पर बहुत फर्क पड़ता है किसी भी। आई यूजुअली कीप इट टू माई सेल्फ। मेरा एंगर बहुत होता था बट आई यूज्ड टू कीप इट इन विद इन बिकॉज आई वॉज इन नो कंडीशन टू फाइट विद देम एंड आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो लेट्स एक्सप्लोर दिस अ बिट मोर अनंत, बिकॉज जैसे हमने बात की, so like there were a few things which we covered right now which I would like to even explicitly list down right now so that और clarity आए जो भी सुन रहे हैं उसके उसमें। So like we started with your curiosity where you were really curious in not just tech but in different areas also, like you were into football, ठीक है, you were into dancing, you were into like singing and playing guitar and all these things, so like you were already exploring your own self through all these things, right? After that you then like you had that thing कि यार you listening to your principal struck you hard कि यार मेरे को भी वैसा कुछ करना है। Fast forward to 9th standard where you were exploring the things and you had that thing back in the mind कि यार मैं इतना सब interested हूँ, मैं इतना सब चीज़ कर रहा हूँ, but then why am I not being like why are my things not in front of the people? Correct. Right? I mean why am I not being that much accepted? And I guess that was also a bit inclined towards that part of the bully which you said. Definitely. कि एक स्टूडेंट जो है वो जब बुली करता है, so somewhere or the other the peer group is really important in our school ages. Definitely. And it's something bad where we're a part of the society and like हम young लोग एक सोसाइटी का पार्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, बट देन स्कूल में अगर कोई बुली होता है या फिर ये सब जो ऐसे लिंचिंग होती है, बुलिंग होता है, उसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है. सो विद दिस जर्नी यू आर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वेर यू वांटेड, if not to prove someone else, prove yourself, yes, that you're doing something. Only me. Yeah. तो कॉन्फिडेंस एक बिल्ड करने के लिए, एंड देन यू डिड दिस प्रोजेक्ट, एंड आफ्टर दिस प्रोजेक्ट यू हैड दिस फीडबैक कि व्हाट्स द ड्रोन, सो लाइक व्हाट्स नेक्स्ट फ्रॉम देयर. सो उसके बाद कुछ ऐसा सिनेरियो होगा कि आई शोड इट, इवन नॉट इवन शोड टू द टीचर, बट आई वुड टेल मैंने ऐसा कुछ किया है सर, लेकिन ठीक है. तो इन दैट रिपोर्ट कार्ड के पीछे रिमार्क्स आता है, राइट, और रिमार्क्स में वो रिपोर्ट कार्ड के रिमार्क में आ गया कि द गाय इज इंटरेस्टेड इन साइंस ऑल्सो. दैट वॉज सेटिस्फैक्टरी टू मी, लाइक फाइनली someone recognizes that I am inclined towards the science. Okay, what was the feeling there? So it was like ऐसा था कि the first achievement I would say, the first intangible achievement that I would feel कि यार finally someone recognized which I love heartily, like because the science is something जो आज मैं ऐसा बोलता कि भाई physics and science मेरे रोम में ऐसा घूम रहा है, if not anything. तो अगर वो कोई recognize करता है, that means someone understands me, right? तो that is a feeling of acceptance. And
उस टाइम तक मुझे वो नहीं मिला. इवन एट माई होम, बैक होम, जो मेरी जिस सोसाइटी में मेरा जो फ्लैट में मैं रहता था, वहाँ पर भी व्हेन आई यूज्ड टू डू विद प्ले विद पेपर एंड ट्राई टू क्रिएट थिंग्स, तो वहाँ के भी बच्चे आके यही बोलते थे कि क्या सब करता रहता है, चलना खेलने जाते ही है वो. बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एक्चुअली. तो एट दैट आई यूज्ड टू बी कॉल्ड बाय नेम कॉल्ड बेकार साइंटिस्ट. व्हाट? बेकार साइंटिस्ट. बेकार साइंटिस्ट. देयर वाज अ गाय हु यूज्ड टू कॉल मी बेकार साइंटिस्ट. अच्छा. ऐसा. तो आफ्टर दैट 9th went down and I got that in report card. I was very happy with that. So I was like चलो अच्छा हो गया. Then I was एक काइंड ऑफ वैलिडेशन मिलता है कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही बात है, एंड कुछ लाइक सोसाइटी में भी एक्सेप्ट होता है. Exactly. Which is really important for a student Definitely. of that age. And meanwhile in the 10th and 10th duration what happened that उसके काफ़ी पहले से एक्चुअली मेरी मॉम काफ़ी बीमार रहते थे. सो मतलब शी यूज्ड टू बी एडमिटेड फॉर हॉस्पिटलाइज होते थे एक महीने तक के लिए. अरे बाप. सो मी एंड माई ब्रदर यूज्ड टू वर्क एट होम. द चोर्स वाज समथिंग दैट वी यूज्ड टू डू. Okay. सो माई जॉब वाज टू डू द कचरा एंड पोता एंड ब्रदर वाज टू डू द बर्तन एंड दैट काइंड. हम लोग पानी लेने नीचे जाते थे उस टाइम पे. तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि काश ये कचरा पोता मुझे नहीं करना पड़े, राइट. एंड आई डोंट वांट माई मदर टू डू इट इधर, सो आई नीड टू डू समथिंग अबाउट. सो तो उस टाइम पे ऐसा सोचा था कि वाई वॉट इफ़ वी कैन क्रिएट अ रोबोट विच कैन डू दिस थिंग्स, राइट. सो उस टाइम पे मैंने एक चीज़ के बारे में सोचा विच इज़ कॉल्ड अ क्लीनिंग रोबोट. क्लीनिंग रोबोट का बेसिक आइडिया यही था कि मेरे लिए ये काम करे, मतलब कचरा और पोता हो जाना चाहिए इन शॉर्ट. तो सो दैट क्लीनिंग रोबोट आई ट्राइड टू मेक इट विद कार्डबोर्ड. इट डिडंट वर्क. सो दैट वाज द 10th. So I dropped the idea and still I was doing कार्डबोर्ड में भी सारे मशीनरी वगैरह करके. I was trying actually, but मुझे कुछ आता नहीं था उस टाइम पे. I was like blank. हाँ जो दिख रहा है जो कर रहे उससे सब कुछ कर रहे. So what was your source of knowledge? मतलब बुक्स में तो नहीं पढ़ाते थे अपने को. Definitely नहीं. The source of knowledge I would say that mostly the media that I used to consume, that was mostly like Discovery Channel and Nat Geo. तब YouTube का इतना एक्सेस था आपको? No, I didn't have a phone. अच्छा, तो आई गेस फोन नहीं था फिर भी आपने ये Phone सब भी चीज़ नहीं कहीं ना कहीं से ढूंढी. सो लाइक व्हाट वाज दैट? डिस्कवरी चैनल एंड Nat Geo. Discovery Channel, Nat Geo, maybe movies also, Hollywood movies like Iron Man, things like this. So these kind of things builds cultivates imagination in one's head. That is what it has done to me. और बस उसी चीज़ को लेकर आई वाज लाइक नहीं मुझे भी आई गेट वेरी एक्साइटेड अबाउट के माई हैंड्स गेट इची. आई वांट टू डू समथिंग. So this gives me goosebumps because now when I feel ना कैसा है कि अभी जो भी लोग देख रहे हैं या फिर ये चीज़ को सुन रहे हैं, what happens is कि at this age every knowledge in the world is free to us. But I can't even imagine कि वो 10th standard का बच्चे ने एक हाई फ्लाइंग लाइक मिड फ्लाइंग ऐसे हवर करता हुआ एक हाँ ड्रोन बनाया या फिर इसमें ट्राई किया. बिकॉज अभी कैसा है कि अभी इतना सब होने के बाद भी लोग वो एक्शन नहीं ले पाते. बट वो टाइम पे your curiosity and your itchiness of doing something was so strong कि ये सिर्फ limited sources Nat Geo वगैरह से भी तुमने देख के कुछ ना कुछ experiment किया. Amazing. I was a maker by born ऐसा है. So I remember when I would with a very small story in between I would come back to this. crayons का box आता था ना उसके ऊपर पता है there used to be a photograph of crayon drawing. हाँ समझ गया. तो मैंने अपनी मम्मी को बताया मम्मी कि ये मुझे ड्रॉ करके दो crayons से. मम्मी वाज लाइक खुद बना ले. मैं कहा मुझे तो आता नहीं है. तो नहीं बना ले उसमें क्या है. तो नहीं तुझे ही बनाना पड़ेगा मैं तो नहीं बनाने. तो सेइंग दैट द मॉम वेंट अवे. आई वाज लाइक यार मुझे तो चाहिए. देन आई ट्राइड. चलो मम्मी ने बोला तो ट्राई तो करते हैं. फर्स्ट टाइम आई डिड इट डिडंट हैपन. सेकंड टाइम इट डिडंट हैपन. 3 times 4 times डिडंट हैपन. बट 5th time आई मेड एक्जैक्टली द सेम विद जस्ट crayons ओनली, नॉट इवन यूजिंग अ पेंसिल. सो कहीं ना कहीं जो हमको सिखाया गया हमारे पेरेंट्स ने वो भी बहुत काम लगा. My father and my mother. My father used to work like 12-13 hours a day. रात को 2 बजे आना, वापस सुबह 9 बजे चले जाना. हम लोग दोनों टाइम पे सो रहे हैं. एंड मॉम इज़ कॉन्स्टेंटली टीचिंग अस कि भाई ये चीज़ ऐसे करनी है. एंड दैट हैज़ हमको और कोर वो जो बोलते हैं ना एकदम ग्राउंड लेवल से क्या ज़रूरी है खुद को बनाने के लिए वो हमको सीखने मिला है हमारे पेरेंट्स की वजह से. कमिंग बैक टू दैट डे व्हेन आई वाज ट्राइंग टू वर्किंग, दैट्स व्हाई यूज्ड टू. आज के आप किसी बच्चे को बोल दो कि घर पे चोर्स करना दे बोलते मुंह बिगाड़ने लगेंगे. यार ये मम्मी ये तो मेरे से नहीं होगा. प्रिविलेज रहता है राइट. सो दैट इज अ प्रिविलेज. आई एम नॉट अगेंस्ट दैट बट इट्स लाइक मुंह ना बिगड़े उसका कारण मुंह बिगड़ने का कारण क्या है. दे आर लाइक दे थिंक दैट ये तो बहुत लोली चीज़ है उनके करने के लिए. बट एक्चुअली इट इजंट. इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ. चोर्स करना इज द पार्ट ऑफ लाइफ. राइट. एग्जैक्टली. एंड मैं ये देखता हूँ जैसे लाइक आई हैव बीन टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल इन स्टार्टअप्स इन फैमिली बिजनेसेस एंड ऑल दीज थिंग्स. एंड वन थिंग इज देयर कि अपने इतना हिपोक्रेसी की बात करते हैं, प्रिविलेज की बात करते हैं. आई मीन ऑल दीज थिंग्स आर रियलिटी ऑफ लाइफ. सर्कमस्टांसेस ऑफ आवर लाइव्स आर रियलिटी ऑफ लाइफ. मतलब किसी के पास प्रिविलेज मिल रहा है
तो उसको यूज़ करना चाहिए, मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। और जिसके पास प्रिविलेज नहीं चाहिए, नहीं मिल रहा है, उसको भी आपका ऐसा माइंडसेट रखना कि चाहिए कि दिस इज़ माई रियलिटी, देन आई हैव टू, दिस इज़ माई रियलिटी। लाइक मैं नहीं करूँ तो लाइक रियलिटी को मैं लाइक चेंज नहीं कर दूंगा, या इट्स नॉट गोना। और कोई काम वाला भी है, दैट डज नॉट स्टिल मेक द वर्क द जॉब अ लोली थिंग टू डू, राइट? एग्जैक्टली नथिंग चेंज, बिकॉज़ दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, रियलिटी तुम्हें नहीं करना पड़ा तो किसी और को तो करना ही पड़ेगा, सो दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो वही सब जो लर्निंग्स थी ना हमारे पेरेंट्स के तरफ से, दैट हैज़ बिल्ट अस। और कमिंग टू दैट पार्ट, तो हम लोग जब चोर्स करें, दैट हैड कल्टिवेटेड दिस आइडिया कि क्या रोबोट अगर ये काम करेगा तो कैसा रहेगा। सो आई स्टार्टेड, यू नो, मैं उस टाइम आई रिमेंबर आई वेंट टू दिस स्टेशनरी, द स्टेशनरी वाला यूज्ड टू नो माई पेरेंट्स। तो मैं उनके पास गया, आंटी मुझे कार्डबोर्ड की एक शीट चाहिए 20 रुपये। तो आंटी में 20 रुपये का है, मैं लो आंटी 20 रुपये। तो बोले क्या बना रहा है? मैंने कि बन जाएगा ना फिर बताऊँगा। तो आई ब्रॉट दैट कार्डबोर्ड टू होम एंड उससे कुछ बना नहीं पाया। तो दैट वेंट, देन आई पूरा 10th उसी में ही चला गया। एंड देन वो लाइक वो क्लीनिंग मशीन, हाँ, तो आई ट्राइड बट इट डिड नॉट हैपन। और उस टाइम पे आप सोशल लाइफ भी एक्सप्लोर कर रहे थे, वी आर इनटू थिंग्स। एंड देन केम द 11th, इट वाज लाइक 11th। तो 11th तो ऐसे ही निकल जाता है, राइट? मस्ती में, राइट। तो 11th में हम लोग आए, तो 11th वाज लाइक, बट माइंड डिडंट। 10th actually a lot of things happened. 10th तक the thing I was talking about, bullying, right? It reached its extreme in 10th. Oh बाप रे. So what happened? One of my best friends, which I used to call my best friend, did something wrong in the social culture of our school, and my name was on the flag. So what happened? The whole class used to discuss about me. So everyone, जब भी I have literally faced this कि मैं सामने से जा रहा हूँ and people is doing like मुँह फेर लेना कि यार ये कहाँ से आ गया. They are doing this, and some that people. That was the 10th end and 11th. 10th starting, and the whole 10th standard was like this. Okay. People comes to me and like, क्या होता चला गया? Let's to mock me constantly, and this was the extreme. I was like, it's enough now. तो when came 11th, और इस टाइम पे ये सब ट्राई कर रहा था ना, I was like, तो 11th में जैसे ही आए, तो my chemistry teacher once came into the classroom and said कि साइंस फेयर आ रहा है, शाला विकास संकुल साइंस फेयर आ रहा है, एवरी ईयर इट हैपन्स, तो उसके लिए सब लोग अपने आइडिया सबमिट करो। आई डोंट नो अबाउट द 63 पीपल इन द क्लासरूम, बट मेरे दिमाग में पहला स्टेटमेंट सर के बोलने का यही आया कि ये चीज़ मेरी है, यहाँ पे तो मैं ही जाऊँगा, नहीं कोई नहीं जाएगा। आई सबमिटेड 3 ideas, all 3 got selected. The 3 ideas was the first was of electric jet engine. As I said, I was also interested in aerospace. Second was this, yes, electric jet engine. Second was this cleaning robot. Third was a knee charging device. So what happens? It can charge your phone. It has a mechanism which joins to your knee. When you walk, it will charge your phone. That using the kinetic energy. Yes. Oh damn. So that was 3 years. So बाप रे. so this was the thing, and I used to draw these things in my notebook. So मैं ये and that was 10th and yeah 10th and oh बाप रे. As I said, I was thinking about these things since very early in my 7th standard, 6th standard. I was thinking on things, how to work and what to make. ऐसा तो वो सब, जैसे कि वो घड़ी वाली की बात बताया था, जो आज स्मार्ट वॉचेज है, तो उसी तरह से ये भी उनमें से ही कुछ चीज़ें थी। तो मैंने वो सर को बोला, मुझे जो बेस्ट आइडियाज़ लगे मैंने सर को सबमिट कर दिया। सर ने देन द प्रिंसिपल कॉल्ड मी इन हिज रूम एंड आस्क्ड मी, अनंत तारा आइडियाज़ हमने बहुत गमे है, तुम्हारे आइडियाज़ हमको बहुत पसंद है, अब 3 आइडियाज़ दिए, तीन अच्छे हैं, तो अब तुम ही बताओ कि तुमको कौन सा आगे लेके जाना है। आई वाज लाइक, दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज कॉल्ड इन प्रिंसिपल्स ऑफिस अलोन। I was like, and for a guy who has been facing so many traumas in the school, yes, it would have been an amazing. Let me tell you, I didn't have friends. Till 10th, I didn't have any real friend. In 11th, I got friends. Because from ऐसा होता है ना, बहुत स्कूल छोड़ के लोग 11th 12th के लिए दूसरी स्कूल में जाते हैं, तो फ्रॉम दोस बैच आई गॉट वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स विच इज स्टिल कनेक्टेड विद मी। तो यही सारे, that only that point of time I got a person whom I can talk to about all my ideas, and who is not trying to judge me कि यार ये क्या है। He is listening to me and he also has ideas, he also shares to me and we can talk at least, right? First time in my life I felt कि भाई स्कूल में ideas की बात हो जा रही है मेरे से to someone, and when I did this, तो how did it feel though? It felt like कि बस और कुछ नहीं चाहिए, liberating थोड़ा सा। हाँ, liberating, it felt accepted.
बिकॉज फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऐसा ही होता था कि बिकॉज आई फेल्ट कि भाई एक्सेप्टेंस ही नहीं है हमारा, तो वो हीदन्स वाली फीलिंग आ जाती है. एंड देन इट वाज लाइक यार, और मार्क्स भी उतने अच्छे नहीं थे कि भाई टीचर्स भी प्रेस करेंगे, तो कुछ भी है वो ऐसा नहीं है. तो इट वाज लाइक हाँ. तो और वैन में वो सब, तो वैन का कल्चर, वो सारे स्टूडेंट्स का मिलने का कल्चर, वो सब थोड़ा मिक्स हो गया था. बट you yourself have to raise your standards, तभी you can change yourself. Your actions and your work which you do, that Definitely. defines how you're accepted. मेरा or कभी भी इम्पल्स रिटालिएट करना था ही नहीं. हमेशा यही करना था कि व्हाट कैन आई डू अबाउट इट, सूदिंगली या फिर सही तरीके से. बिकॉज आई न्यू कि मैं शायद पावर में ना जीत पाऊँ, पर बुद्धि में जीत जाऊँगा. तो आई सबमिटेड 3 आइडियाज़. द प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड प्रिंसिपल ने बोला कि है ना 3 आइडिया है, क्या करेंगे. मैंने कहा सर देखो, ये नी वाला चार्जिंग वाला तो मैं खुद ही डिस्कार्ड करता हूँ, अभी नहीं करना है. दिस इज एनी वन कैन डू दिस. और जेट इंजन वाला ऐसा है, ये दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर लो. तो सर ने बोला तू ही बता दे. मैंने कहा सर जेट इंजन वाला ऐसा है जिसका बहुत सारा काम लगेगा, तो मुझे नहीं पता, तो आप ही बताओ सर, मुझे तो दोनों ही एक जितने लगे. तो सर ने कहा कि दिस इज़ वेयर द मेंटर पार्ट ऑफ दैट प्रिंसिपल केम्ड इन, कि मुझे ऐसा लगता है कि क्लीनिंग रोबोट का आज के ज़माने में एप्लीकेशन ज़्यादा है, सो वी शुड डू दिस. तो आई वाज लाइक ओके डन, मुझे तो प्रॉब्लम ही नहीं है. तो वी वेंट अहेड विद दैट. और तब मैंने सर को बोला कि सर अब बनाना है, इसका क्या करेंगे. तो सर ने बोला कि बात करो सर केमिस्ट्री टीचर से, वो लोग बताएंगे. तो सर ने उस टाइम पे बोला कि अपने बाहर किसी प्रोजेक्ट मेकर को दे देंगे. उस टाइम पे पहली बार मैंने वर्ड प्रोजेक्ट मेकर सुना था, आज सब लोग जानते हैं. तो आई वाज लाइक प्रोजेक्ट मेकर, मतलब मैं कब नहीं बनाना. आई वाज लाइक कि मुझे बनाना था, आप किसी और को क्यों दे रहे हो. So I mean, this is the thoughts which is going there in the mind of a naive person who is just starting out to explore the Yeah. action side of it. So this is a really interesting conversation. So like you didn't realize ki what's the next step, and Yeah. the teachers told you ki, your mentors told you ki okay, this is how the world works. exactly. Okay. So this is पहली बार स्कूल से बाहर क्या हो रहा है ना, वो पता चलने जा रहा है. So this is your first project. ऐसा लिया है. the real first project. I would tell you कि कितने extent तक जाता है. This is the groundwork of what we are doing today. So ये चीज़ हो रही है. And when I went ahead with that, तो उन्होंने बोला कि चलो प्रोजेक्ट मेरे को देते हैं. मैंने सब कुछ ड्राइंग कर लिया था. I had an exact diagram of what I want. With all the components also. With all the components. And how did you like manage the knowledge of that again? So I tried to gather it from the amount of internet that I could access, but there was not much, because this was something which was not available at that point of time. आज क्लीनिंग रोबोट्स हैं दुनिया में, तो हम लोग ऐसा कोशिश कर रहे थे कि आई वॉज ट्राइंग कि भाई कुछ तो इन्फॉर्मेशन, तो वॉट एवर नॉलेज आई हैड फ्रॉम द रिमोट कंट्रोल कार्स एंड द ड्रोन आई मेड और वॉट एवर, मैंने सोचा कि इसी को ही मिला के कुछ ना कुछ तो कर लेंगे. यहाँ पे मोटर लग जाएगी, यहाँ पे लग जाएगा, एंड द कार्डबोर्ड वुड बी हियर एंड देयर, एंड इट वाज ऑल लाइक दैट. एंड देन यही इसी चीज़ का एग्जैक्ट डायग्राम बना कि आई गेव इट टू द प्रोजेक्ट मेकर कि आई वांट समथिंग लाइक दिस. A project maker was a third person from outside school. outside school. It was a company. It was a small company used to do this project making thing. I didn't know that point of time. So उसमें पैसे देने पड़ते थे? Definitely yes. Okay. तो मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ. So we gave them about 3,000 rupees. I don't know how my teacher agreed, but he was like हाँ चलो 3,000 रुपये देंगे और ये चीज़ बना लेंगे. And like how did you manage that? So school paid that. Okay. School paid that. Okay. So I don't know, the whole school, the whole students classroom, सब लोग हमारे टीचर्स को कहीं ना कोई किसी तरह से गाली देता होगा, किसी को नहीं पसंद आता होगा, बट आई एम वन ऑफ दोज रेयर स्टूडेंट्स जो अपने टीचर्स को प्रेस करता है, बिकॉज आई हैव गॉट सो मच ऑफ सपोर्ट फ्रॉम स्कूल एंड आउटसाइड स्कूल ऑल्सो. It even depends on how. So like लोग बोलते हैं कि लोगों को मैंने देखा like for in all the schools as you said ना कि एक usual mentality रहती है students की यार ये teacher ऐसा करता है वैसा करता है. I guess it even depends on the students how they're approaching the teachers, because teachers are there actually for you. समटाइम्स इमोशनली कोई टीचर कुछ गलत बोल दे, गलत तरीके से बोल देता है तो अपने को अच्छा नहीं लगता है, तो अपने इमोशनल होकर कुछ भी गलत परसेप्शन बना लेते हैं. बट एज इन योर केस, आई मीन आई बिलीव फॉर लाइक यंग पीपल हु आर लुकिंग एट दिस, आई मीन दिस गिव्स देम अ पर्सपेक्टिव कि यार तुम पे भी बहुत सारी चीज़ मैटर करती है. तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आजू बाजू दुनिया घूम रही है, बट ऐसा नहीं है. आई मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड. इफ यू इनिशिएट, ट्रस्ट मी, इफ यू आर इन द राइट डायरेक्शन, यू हैव राइट इंटेंशंस, सब कुछ अपने आप लाइन में आएगा. I'm not talking about it's a fate है, ऐसा कुछ भी नहीं. मैं ऐसा बोलूँगा नहीं कि अंधविश्वास से बिलीव करना शुरू कर दो. मैं ये बोलूँगा जस्ट स्टार्ट एटलीस्ट, तो कुछ ना कुछ होगा तुम्हारे साथ. It attracts. It is the gravity of the works. It is, I think this is how universe works. When you're in the right direction,
तुम्हारी ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि लोग तुम्हारी तरफ आते हैं, अपने आप आते हैं, राइट? तो वो ये चीज़ हुई मेरे साथ, एंड दिस इज हैपनिंग आफ्टर द 10th पार्ट, क्योंकि ये जो बुलिंग वाला सीनर हुआ था विच लीड्स टू इट एक्सट्रीम, ये टीचर्स भी इन्वॉल्व थे इस चीज़ में. ओके. सो टीचर्स आर ऑल्सो, टीचर्स यूज्ड टू कॉल मी, अनंत ये सब क्या कर रहा है तूने ये सब गंदा गंदा लिखा है, ये सब किया है, एंड इट वॉज नॉट मी. तो माई टीचर्स लाइक ये सब अब से मत करना. सो आई वॉज कॉल टू स्कूल. तो पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे टीचर्स ने इस तरीके से बुलाया हो, ऐसा कुछ नहीं था. आई वाज वेरी, इट वाज वेरी एम्बेरेसिंग फॉर मी. और ऐसा बहुत सेल्फ एस्टीम नाम की तो कोई चीज़ थी नहीं उस टाइम पे. उस टाइम के स्टूडेंट, आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट लाइक, बिकॉज सम सिमिलर थिंग्स हैव हैपेंड इन माय स्कूल लाइफ आल्सो, एंड आई कैन सीरियसली वाउच फॉर दिस दैट कि एक स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है वैलिडेशन एंड सोसाइटल एक्सेप्टेंस, जो पूरा खाली हो चुका होता था वो. डेफिनेटली. तो जब मुझे पहली बार ये प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सेप्टेंस मिलने लगा, एंड आई वाज लाइक यार बनाना तो मुझे ही था, लेकिन प्रोजेक्ट में चलो कोई बात नहीं, इस बार जाने दिया. तो 3000 देने के बाद भी एकदम खटारा सी चीज़ हाथ में आई. इट वॉज टोटली ऑपोजिट ऑफ वॉट आई हैव गिवन टू द ड्राइंग दैट आई हैव गिवन टू द प्रोजेक्ट मेकर. उससे एकदम ऑपोजिट चीज़ बन के मेरे हाथ में आई थी. वो चल भी नहीं रहा था. सो आई ब्रॉट दैट टू स्कूल. मैंने उसको काम कर सके, दिखा सकूँ उतना, थोड़ा बहुत रिफर्बिश किया, उसको काम करने लायक बनाया, एंड देन इट वर्कड well. Then we went to our first exhibition. Cardboard का ही था ये भी? It was not a cardboard, it was more like it was a MDF board. समझ रहा हूँ. Which was made from, ऐसा था कि वो प्रोजेक्ट मेकर ने भी कहीं से पार्ट उठा के ही बना के दिया था और 3000 रुपये ले लिया था, ऐसा था. Which I understood कि भाई ये 3000 का काम तो नहीं था, right? But I don't know why my teachers expert, but it's fine. And all of this was in Vadodara itself. It was in Vadodara. तो पहली बार मुझे ऐसा एक्सपोजर मिला कि पैसे देकर भी इतना खराब काम होता है. नहीं तो अपने दिमाग में था क्या पैसा दे दो सब बन जाएगा. हाँ, तो ऐसा नहीं होता. यू हैव टू बी इन्वॉल्व. तब से मेरा, उस पॉइंट से मेरा ऐसा बन गया था दिमाग कि आई वांट टू डू इट माई सेल्फ, कुछ जैसे तैसे करके. और ये पॉइंट पे ऐसा था ही नहीं कि अब क्या करना है, कैसे करना है. बट दिस इज़ वेयर आई वेंट टू माई फर्स्ट एग्जीबिशन, जहाँ पे ये मुझे प्रेजेंट करना था. दिस कॉम्पिटिशन वॉज दिस शाड़ा विकास संकुल. दिस वॉज द एग्जीबिशन, और जिसका जजमेंट भी होता है. सो शाड़ा विकास संकुल. हाँ, शाड़ा विकास संकुल. शाड़ा विकास संकुल. हाँ. सो SVS 6. सो यहाँ पर इट वॉज इन रिफाइनरी टाउनशिप, इन रिफाइनरी स्कूल, जहाँ पे ये एग्जीबिशन, बहुत सारे बच्चे आए थे, बहुत सारे, फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ वडोदरा. सो इट वॉज इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन ऑफ अ काइंड. तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम मेरा एग्जीबिशन, आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि यार इतने लोगों को दिखाएंगे. और उस टाइम पे आई वॉज नॉट अलोन. माई PT टीचर सन वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस. तो ही वॉज माई हेल्पर इन दिस. मेरे प्रिंसिपल वाला कि इसको भी साथ में रख, इसको भी इंटरेस्ट है तो ये तेरे साथ हेल्प करेगा तुझे. तो भी जैसे तैसे करके शाड़ा विकास संकुल में पहुँचे. हमारे सर लेके गए हमको कि चलो अनंत जाना है. अभी हम लोग सब गए. रिफाइनरी में हमारा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जैसा था ये. एंड वहाँ पे बहुत सारे बच्चों से मिला, उनके आइडियाज़ समझे. एंड आई गॉट टू नो कि भाई आई एम नॉट अलोन. देयर आर सो मेनी अदर सच किड्स जो लोग इतना सोच रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं. देयर वॉज अ गाय आई रिमेंबर who was trying to decrypt the mathematics of a black hole. At what age? I think he was also in 11th standard. Okay. I think. And he had this, उसने उस चीज़ के लिए कैलकुलेटर बना रखा था from a cardboard, and it was like, dude, mind blowing. This is so. Then I felt like now I am in a place where I belong. हाँ, where I belong, जहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है. This is my place. इतने लोगों के साथ, वेर आई एम नॉट द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, बट आई एम स्टिल लाइकिंग इट. दिस इज वेयर माई वाइब इज. आज के वर्ड्स में दिस इज लाइक इधर मेरा वाइब मैच हो रहा है. आई वॉज वेरी हैप्पी इन. और मेरे को इतने लोगों से मिला. द फर्स्ट टाइम आई फेस जजेस, राइट. तो जजेस आए, हमारा प्रोजेक्ट देख रहे और देख रहे. हमारा वैक्यूम इतना पावरफुल था, इट टोर द शीट ऑन द, वो टेबल के ऊपर है और तार पत्री डालते वाइट कलर का, उसने उसको फाड़ दिया इन फ्रंट ऑफ द जजेस. एंड देयर वाज अ होल सर्कल, जैसा फटा हुआ अंदर चला गया था. एंड ही वाज लाइक ये तो बहुत पावरफुल है. इट वाज दिस वाज आफ्टर वी मेड इट टू वर्क. दैट प्रोजेक्ट मेकर ने तो बहुत कचरा बनाया था, पर हमने उसको जब काम करने लायक बना, तब वो वैक्यूम कर ही नहीं रहा था. एंड नाउ इट वैक्यूम लाइक इट सक्ड एवरीथिंग इन. एंड तब वो सब लाइक एग्जिस्ट भी नहीं करता था क्या? अभी जो क्लीनर्स थे वो आइडिया भी नहीं था क्या? नहीं था. एंड अगर कुछ होगा तो इट वाज नॉट रीच्ड हियर. ओके. बिकॉज उस टाइम में मेरे पास इंटरनेट का भी इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं था. आई डिडंट नो कि भाई क्या है बाहर. हाँ. मुझे तो यही था, मेरा इंपल्स तो एक ही था कि भाई मुझे बनाना है. Because I mean that rooted from your circumstances that you identified that problem long back. Yes. And then you didn't want that to happen, so like you created this solution. Definitely. Okay. और
वी डिड दैट एंड फर्स्ट टाइम फेस जजेस एंड एक्सप्लेन इट टू देम. फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि कोई मुझे सुनने के लिए आ रहा है और मेरी बात सुन रहा है. आई वाज लाइक what else do I want in my life other than this? सब सॉर्ट है. Exactly, and I was very happy. I was like, I'm happy, it is working. और I was ready if the project even didn't work ना, I was happy. मेरे को ऐसा expectation नहीं था कि अभी कुछ आगे इसके आगे कुछ होगा. One day after that day, it was a 2-day exhibition. No, it was a 1-day exhibition. उसके कुछ दिनों बाद मेरे जो टीचर ने हमें हेल्प की थी वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो वो टीचर ने मुझे फ़ोन किया, अनंत क्लीनिंग रोबोट વડોદરાના કોમ્પિટિશનમાં નંબર 1 પર સ્ટેન્ડ કરે છે. મેં કીધું વોટ? आई वॉज सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, दैट वॉज डिस्ट्रिक्ट लेवल. लाइक सर ऐसा कुछ भी होता है? Because you were not there with any expectations, you were following your passion. हाँ, मुझे तो यही जो करना है मुझे करने मिल रहा है, आई एम फाइन, मुझे तो मजा आ रहा है. देन आई गॉट टू नो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल भी है इसके आगे, और उसके लिए मैं इंटर स्कूल में नंबर 1 पे स्टैंड कर रहा हूँ. आई वाज लाइक, क्योंकि मैं बाकी सारे एग्जीबिशन देख चुका था. आई वाज लाइक यार कितने अच्छे रहे, कितना कुछ, बिकॉज दे हैड एक्सैजरेटेड मॉडल्स एंड व्हाट नॉट, दे हैड एवरीथिंग, एवरी रिसोर्सेज, राइट. अच्छे बड़े स्कूल्स से आए थे, एंड एट दैट पॉइंट माई स्कूल वाज नॉट दैट मच बिग. तो आई वाज लाइक यार, देन आई वाज लाइक सर सही में सर मजाक तो नहीं कर रहा होता. आई रिमेंबर कि मैं उस टाइम पे टेरेस पर जंप्ड ऐसे कर, वाह, आई वाज सो एक्साइटेड. देन आई वाज लाइक सर, मैं गया जैसे स्कूल के वापस, सर देखो अब प्रोजेक्ट मेकर को नहीं देना है, अभी मैं बनाऊंगा, ठीक है. तो सर ने बोला ठीक है तू बना ले, कितने पैसे लगेंगे? सर 3000 रुपये, मुझे भी 3000 रुपये ही देना. तो मैंने 3000 रुपये लिए, जैसा हमारा डायग्राम था वैसा ही, विद द हेल्प ऑफ माई ब्रदर एंड हिज फ्रेंड. उनके ब्रदर्स नेम? शिवराज तोमर, जो आज मोशन ऑटोमोटिव में CEO है. ओके. एंड को फाउंडर. सो ही इज एल्डर टू यू? या, ही इज 5 years elder than me. ओके. सो ही हैड पास्ड आउट स्कूल एट दैट पॉइंट? या, वो हाँ मेरे उस टाइम पे निकल चुके थे, एंड ही वाज डूइंग इलेक्ट्रॉनिक्स इन सिग्मा. ओके. उस टाइम पे सिग्मा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी. तो व्हेन आई वाज डूइंग, और उनके फ्रेंड के साथ वो, बिकॉज उनका जो फ्रेंड था उनके साथ मिल के दे हेल्प मी टू मेक दिस थिंग. तो उन्होंने बोला, उस टाइम हमने लकड़े से बनाया, वुड से हम लोग ने वो चीज़ बनाई. मोस्टली द अदर गाय मेड इट, क्योंकि मुझे तो आता नहीं था इतना सब कुछ यूज़ करना. तो इसने बोला कि देख कैसे होगा. आई यूज्ड टू असिस्ट विद दैट. फिर मैं सीखा कि this is how my maker journey was trying to evolve, and that thing was made. Then it was the district level. So district level was kind of funny. The district level happened in Brightdale School, जहाँ पर it was जो आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट्स वाले थे उनके भी स्टूडेंट्स आए थे अपना प्रोजेक्ट लेके. आई रिमेंबर देयर वर 150 प्रोजेक्ट्स इन दैट कॉम्पिटिशन, 150 कॉम्पिटिशन. और ऐसा हुआ कि उस टाइम पे हमारे स्कूल के जो टीचर थे हमारे साथ आए थे एज अ कोऑर्डिनेटर. वो 2 दिन का एग्जीबिशन था, तो वो हमारे साथ आए थे, हमारे स्टॉल पे हमारे साथ खड़े हुए थे. हम लोग सब जजेस आए, वो सर अभी भी यहीं खड़े हैं, हम लोग सब एक्सप्लेन करे, जजेस आके चले गए, एंड वाज फाइन. ये अब जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ मुझे बाद में पता चली. वन ऑफ द जजेस हु न्यू आवर क्लास टीचर कॉल्ड द क्लास टीचर कि तुम अब बाहर चले जाओ, हमको उनसे अकेले में बात करनी है, नहीं तो बाकी सब जजेस को ऐसा लग रहा है कि बायस हो जाएगा. तो इसलिए हम लोग उससे वापस बात करना चाहते हैं. सो हमको वो गोली दे के चले गए कि હું આવું છું થોડી વાર મને કામ છે, ऐसे कि हमारे सर चले गए. और वो सारे जजेस 6 जज थे, 6 के 6 जज वापस आए. एंड देन दे वर लाइक, और इस पॉइंट पे मुझे पता था कि इसके आगे भी लेवल्स होते हैं. देयर इज स्टेट लेवल, देयर इज अ नेशनल लेवल, देयर इज एन आल्सो इंटरनेशनल लेवल. आई वाज लाइक, यानी एक ही ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करता है? दिस इज नॉट ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज लाइक अ कैंपेन. ओके. जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो कैंपेन टू कैंपेन ट्रांसफर होते रहते हैं. गॉट इट. सो वन वाज शाळा विकास संकुल, तो शाळा विकास संकुल ही डिस्ट्रिक्ट करता है, बट वंस इट इज टू स्टेट लेवल इट चेंजेस. समझ द कैंपेन चेंजेस, बट द नॉलेज वो कैसा होता है, एक बहुत बड़ी इवेंट होती है तो वो छोटी छोटी इवेंट्स में डिवाइडेड होती है ना. समझ गया. उस तरीके से उनका कुछ स्ट्रक्चर होता है. सो देन दे केम बैक. देन दे केम बैक एंड आई वाज लाइक ओके. तो सब लोग वापस आ गए. तो हमको मेरे को आके एक ही सवाल पूछा, अनंत हमको आपसे कुछ थोड़े क्वेश्चंस है, अगर आप वो हमारी क्वेरी सॉल्व करते हो तो वी माइट कंसिडर यू फर्दर. एंड दिस वाज, यू वर लीडिंग द प्रोजेक्ट टीम दैट टाइम? या, उस टाइम पे वी वर लाइक टू, हम मेरे साथ एक और स्टूडेंट जुड़ गया था, पीटी टीचर का. वो पीटी टीचर पे वो तो था ही, लेकिन एक और लड़का था मेरी क्लास का ही, तो उसको भी हेल्प करना था. बोले आ जा, और सब मेरे फ्रेंड्स ही थे. बोला चलो कुछ नहीं. उस टाइम पे क्या फ्रेंड ही होता है सब कुछ. तो ये इस तरीके से सब लोग बन गए. तब तक कुछ नहीं था और अचानक से सब लोग जुड़ रहे हैं. चलो फाइन. तो वी वर वर्किंग ऑन दिस एंड वो लोग वापस से, अनंत हमको कुछ क्वेरीज अगर आप सॉल्व करो तो वी माइट कंसिडर यू फर्दर. आई वाज लाइक ओके, पूछो ना, कोई बात नहीं. एंड बिकॉज इस बार मैंने खुद ये बनाया है, आई न्यू एवरीथिंग अबाउट इट, राइट. व्हेन यू मेक थिंग्स ना,
यू On ऑल्सो your own. अंडरस्टैंड इट्स स्कोप, इट्स इन एंड आउट्स, इट्स प्रॉब्लम्स, इट्स एडवांटेजेस, सब कुछ समझते हो जब तुम उस चीज़ को बनाते हो। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जब वो चीज़ जुगाड़ करके बनी है ना तो यू नो हाउ टू सेव इट इन फ्रंट ऑफ जज, सही है। कि कौन से फ्लॉज उनके सामने नहीं दिखने चाहिए, तो यू नो हाउ टू सेव दैट। तो अब मुझे वो सब पता है, तो उस टाइम पे एकदम मस्त ऐसा, उस टाइम पे है ना आई बिल्ट माई फर्स्ट सेंसर फ्रॉम टिन फॉइल। तो Wow, भाई। एक्चुअली ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस के लिए क्या था, आई क्रिएट एक्चुअली अ स्विच जो इस तरीके से मेरे सर्कुलर उसके आगे पड़ा रहेगा। तो दैट स्विच वॉज जस्ट अ एयर गैप फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ओके, और उनको जैसे ही कोई ऑब्स्टेकल इसको छुएगा दैट स्विच वुड कोलैप्स। तो बिकॉज दोज थ्रू आर कंडक्टर इट वुड सेंड that would complete a circuit which is समझ रहा connected हूँ। to a motor which is acting as a resistor. ओके। So what happens, Got it. the driving motor gets a lower power, so वो turn करने लगता है। Okay. So this was my idea of thinking कि ये काम कैसे करेगा। Damn, and like even like where did you get this knowledge again from? I don't know actually, I don't exactly know the source of it, but I was trying to understand how, क्योंकि मुझे पता है कि एक मोटर को जब चलाते हैं it drains the battery, but अगर दो मोटर लगाए तो दोनों मोटर धीमी चलती है, Okay. राइट। So सेम you- बैटरी पे दो okay. मोटर चलते हैं तो दोनों मोटर धीमी चलती है। तो व्हाट हैपेंड कि अगर ये मोटर को एक स्विच के साथ कनेक्ट कर दो, जो स्विच मेरे आगे लगी हो, तो दोनों मोटर धीमी चलेगी, और अगर ये मोटर ऑपोजिट साइड लगे तो ये जहाँ ऑब्स्टेकल है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेगा। And this was 11th, right? दिस वाज 11। So 11th में basic knowledge I guess चालू हो जाती है साइंस की। यस, Okay. Okay. आई आल्सो सिलेक्टेड 11th साइंस Okay. फॉर ऑब्वियस रीजंस। Okay. तो फिर साइंस में एक बेसिक नॉलेज आई, you understood the practical applications and then Yeah. here's how you applied it. या Okay. सो Okay, go. बहुत लोगों को ऐसा होता है स्टूडेंट्स को, भाई ये सब कहाँ ज़िंदगी में आने वाला। आई लेट मी टेल यू एवरीवेयर ये हर जगह अप्लाई करता है। तो बस उसी तरीके से आई मेड दिस फर्स्ट सेंसर ऑफ माइन एंड देन आई वाज शोइंग दिस टू जजेस का सवाल, एंड आई लव द आई वाज एंजॉइंग दिस क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन केम इनटू माय, आनंद आपने ये चीज़ जो है उसकी कैपेसिटी क्या है। मैंने कहा सर 500 ग्राम्स ऑफ ये डस्ट कलेक्ट कर सकता है। चलो ठीक है, तो इसमें कितनी मोटर्स लगी हुई है। सर 2 मोटर्स लगी हुई है, क्योंकि उनको पता, एज एन एल्डर्स दे नो के प्रोजेक्ट मेकर्स बनाते हैं, मुझे तो नहीं पता था उस टाइम पे। मतलब कि इसमें कितनी मोटर्स लगी है, तो बोले कितनी स्पीड से चल सकता है, ये सब बेसिक क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे। दैट्स लाइक हाँ ये तो मुझे पता है। देन द अदर जज आस्क्ड मी कि भाई आनंद इसका स्कोप बताओ। ये तो चलो ठीक है इतना तो हो जाएगा, लेकिन इसके साथ और क्या हो सकता है। वन ऑफ द स्किल्स दैट आई हैव गेन्ड इन माई लाइफ टिल नाउ, एंड अभी मैं उसको तराश ही रहा हूँ, और तब भी थी मेरे पास, टू हैव दिस ब्रेनस्टॉर्म करना विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो विद इन दैट उन्होंने मुझसे सवाल किया और मैंने आंसर दिया। उस बीच मैंने इसके मॉडल्स बना दिए इन माई ब्रेन। मैंने उनको इमीडिएट आंसर में जवाब दिया कि मैम देखो, मैं इसके पास तो पहले तो वर्टिकल क्लीनिंग करवा सकता हूँ। तो उन्होंने बोले तो कैसे किए, ऊपर चढ़ने लगेगा। मैंने कहा नहीं मैम, एफिशिएंट नहीं होगा, उसका वेट क्या है ऐसे। क्या बात है? मैं इसके ऊपर आर्म लगाऊंगा जो वैक्यूम करके ऐसे ऊपर करके आपके कर्टेंस वगैरह वॉल्स के ऊपर जो डस्ट लग जाती है उसको सक कर लेगा। Okay. फिर और बोले मैम मैं इसके पास एक और आइडिया मेरे पास, मैं इसके साथ वाटर बॉडीज क्लीनिंग के लिए भी एक मशीन सिमिलर बट अटैचमेंट के साथ इसको बना सकता हूँ। इसके साथ एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ, एयर प्योरीफिकेशन के लिए भी इसके अंदर मैं ऐसे डिवाइसेस ऐड कर सकता हूँ जो ये उड़ने के साथ ये उसी एयर के साथ वो एयर फिल्टर आउट करके द कार्बन अमाउंट इन द एयर कैन बी रिड्यूस विद दिस काइंड ऑफ डिवाइस। एंड बाय द अमाउंट ऑफ डिटेल्स विच आई वॉज शेयरिंग टू देम कि भाई इसमें एफिशिएंसी कम हो जाएगी, इसमें ये सब चीज़ें, दे वर वेरी हैप्पी अंडर गेटिंग दिस आंसर। क्योंकि नहीं होता ना इनसाइड बनाने वालों को भी, तो दे वर लाइक ये नहीं इसने सोचा है, एंड चलो ठीक है, ऐसे एकदम क्या बोलते हैं पोकर फेस बना के सबके सब निकल गए। एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है। देन और मैं तो अपनी मस्ती में मैंने बोला चलो अब बाकी एग्जिबिट्स घूम लेते हैं। हाँ. तो वही सब चल रहा है। देन अगेन आफ्टर फ्यू डेज और अ मंथ माय सर कॉल्स मी, अनंत આપણે ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલમાં પણ ફર્સ્ટ સિલેક્ટ થઈ ગયા છે। आई वाज लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ये भी क्या? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज आई वाज लाइक कि मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। मतलब मुझे ऐसा था मैं तो जो करना चाह रहा हूँ वो हो रहा है मेरे साथ, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। मेरे को और कुछ चाहिए ही नहीं था, बट इट वाज हैपनिंग, आई वाज हैप्पी विद इट। एंड ये पॉइंट पे 11th खत्म होने जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल इज डन एंड 11th इज ऑल्सो डन। चलो अब 12वीं में आ गए। तो 11th के एंड में और 12वीं के जस्ट पहले 12वीं के इनिशियल पार्ट में, एंड बिकॉज वी वर सिलेक्टेड फॉर द स्टेट लेवल विच वॉज हेल्ड एट सूरत के अंदर एक बहुत बड़े डोम के अंदर देयर वर अबाउट 400-500 प्रोजेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम
द होल स्टेट ऑफ गुजरात, एंड बहुत सारे सिटीज़ से बच्चे आ रहे थे और वहाँ पे जाके अपने प्रोजेक्ट्स दिखा रहे, अलग अलग स्कूल से आ रहे हैं और प्रोजेक्ट्स दिखा रहे. इट वॉज अ वेरी बिग प्लेस. 8वां गेट ऐसा जगह थी वहाँ पे था, और वहाँ पे एक डोम के अंदर हमारा भी एक प्रोजेक्ट है. उस टाइम तक मैंने इसका एक और वर्जन बना दिया था विद द हेल्प. हाँ, बट बिफोर गोइंग देयर हमारे क्लास मेरे जो प्रिंसिपल थे उनके रिलेटिव का कंपनी था GIDC में. एज अ स्कूल स्टूडेंट पता भी नहीं होता व्हाट इज़ GIDC, राइट. तो उनका GIDC में एक फैक्ट्री था. GIDC इज गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. डेफिनेटली. तो उनको ऐसा था कि वहाँ पर जो लोग काम करे, देयर वर फ्यू पीपल वो लोग मुझे उस प्रिंसिपल मेरे को ऐसे खोपड़ी लोग છે ત્યાં એમના જોડે મળી આવ્યા, તને શીખવાડશે, એમને ખબર છે કે આના જોડે શું કરવાનું, क्योंकि स्टेट में सिलेक्ट हो गया तो प्रिंसिपल डिडंट एक्सपेक्ट कि भाई इतना कुछ होने वाला है. तो क्योंकि अभी तक हुआ नहीं. एंड आई वाज like and during this time when you were having all of these things like progressing in through all these stages, what was the whole atmosphere in your school about bullying and all these school things? was like mad about it. So, school को like this was a huge thing school में. Yeah, स्कूल में बड़ी चीज़ हो गई थी. एंड द पर्सपेक्टिव दैट वाज इन 10th, दो जो लिंचिंग और सबकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है, नाउ इट वाज ट्रांसफॉर्मिंग. Okay. So now people are like, Anant, तो सिलेक्ट થઈ ગયો લા, congratulations. Now everybody is like praising me. I was like, okay. So how were you feeling at that? I was feeling humbled actually. ऐसा हो रहा था कि मतलब मुझे आपका सिर्फ अप्रेजल नहीं, मुझे अप्रेज नहीं होना है. I was like, it's okay to just accept me and that's fine with me. मुझे नहीं चाहिए कि आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, बट मुझे खाली इतना चाहिए कि भाई नॉर्मल तरह ट्रीट. लेट्स बी नॉर्मल, राइट. डोंट बुली मी जस्ट बिकॉज आई एम स्किनी, राइट. मे बी आई एम नॉट फ्रॉम हेड, तो क्या. सो दैट वर्कड आउट फॉर मेनी इट डजंट, बट मैं लगा रहा इसलिए शायद. एंड आई हैव वर्कड डे एंड नाइट फॉर दैट. बट अनंत, लाइक व्हाइल यू सेइंग दिस नाउ, वन क्वेश्चन पॉप्स इन माय माइंड कि कैसा होता है कि लोग सोचते हैं कि हमारे पास 5 आइडियाज है. फॉर एग्जाम्पल इवन यू हैड 3 आइडियाज, ठीक है. सो यू सिलेक्टेड दिस एंड दिस वर्कड, बट लोगों को ऐसा लगता है कि यार हम ये करेंगे और वर्क नहीं किया तो दूसरा भी करे, या फिर ये भी क्यों करना है, हो सकता है वर्क नहीं करेगा, और सेल्फ डाउट आता है एंड ऑल दीज थिंग्स. सो लाइक आई अंडरस्टैंड दैट फॉर यू इट वाज मोर ऑफ द प्रोसेस विच यू रियली लव्ड, बट फॉर दोज हु आर हैविंग दिस थॉट कि अपने को इधर जाना है या फिर ये करना है, उनके लिए जो सेल्फ डाउट उनको रोकता है, व्हाट डू हैव टू से अबाउट दैट? पहली बात तो एक परसेप्शन चेंज करना है कि सक्सेस एक डेस्टिनेशन है. सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ होल प्रोसेस वहाँ तक पहुँचने की. वाओ. तो अगर वो सक्सेस है तो एवरी स्टेप इन दैट प्रोसेस इज अ प्रोग्रेस, एंड दैट प्रोग्रेस इज अ सक्सेस. वाओ. सो इवन इफ इट फेल्स, यू हैव सक्सीडेड. ग्रेट, अमेजिंग मैन. आई मीन दिस इज अ रियली डीप थॉट. यस. तो मेरा शुरुआत से यही थॉट रहा है, बिकॉज आई वॉज एंजॉइंग द प्रोसेस. आई इन द लव ऑफ मेकिंग आई एम डूइंग दिस थिंग्स, नॉट कि मुझे कभी इंटरनेशनल जाने मिलेगा, कि मुझे कोई प्रेस करेगा. ये सब तो मेरे लिए था ही नहीं, बिकॉज उसके पहले का सीनर टोटली ऑपोजिट है. तो मेरे लिए वो सब था ही नहीं. एंड नोबडी नो मी, मतलब मेरे क्लास में मुझे कोई जानता ही नहीं था, राइट. और जब ये सब चीज़ें हो रही है, एंड देन एवरीबॉडी इज लाइक अनंत, बिकॉज नाउ टीचर्स आर टेकिंग मी सीरियसली. तो स्टूडेंट्स को ऐसा है कि भाई ऐसा तो क्या कर लिया, राइट. एंड एवरीबॉडी इज लाइक, और तभी भी लिंचिंग खत्म नहीं होती, तभी भी लाइक ये तो इंटरनेट से उठाया ना, ये आइडिया तो ऐसा था ना, ऐसा ये सब. एंड आई यूज्ड टू जस्ट इग्नोर अबाउट ऑल ऑफ दिस. मुझे हाँ ठीक है इंटरनेट से कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था, इवन आज भी नहीं पड़ता है. इसलिए बिकॉज़ योर लाइक पर्पस एंड मोटिवेशन इज समथिंग एल्स नाउ. हाँ, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था. एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भाई व्हाई डज इट मैटर कि अगर वो फेल हो रहा है तो क्या पता इफ इट वर्क्स, बिकॉज when you are into the process now wonders happen. and मैं बताता हूँ ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज वही चीज़ का मैंने मेरा फर्स्ट स्टार्टअप किया फ्रॉम द नेम ऑफ तोमर टेक, एंड इट फेल्ड, बट दैट इज व्हाट हैज लेड मी टू टुडे. So again, like let's move slow and let's also explore like what happened in that state. So like what was the outcome of that state competition? So again, first in the state competition and got selected for nationals. And that time I literally was mad when the sir called me and Anant, तू मानेगा नहीं क्या, तो sir like sir select हो गए ना. Because now I got, मेरे को पता चला, now I could predict कि भैया ऐसा कुछ होने वाला है. So I was like कि हाँ सिलेक्ट हो गए, वो भी अब नेशनल्स के लिए, और it is going to be huge now. And like, और उस टाइम पे सर ने मुझे कहा कि आनंद, let me tell you, you are the first person from the whole Gujarat who is selected for nationals from these many years. Oh wow. I was like,
ओके, दिस इज अ ह्यूज थिंग, दिस इज अ ह्यूज थिंग यार. पहली बारी बड़ौदा में से बड़ौदा सिलेक्ट हुआ है और वो भी विद्युत बोर्ड विद्यालय सिलेक्ट हुआ है टू बी प्रेजेंटेड एट नेशनल्स. एंड वाई नेशनल इज अ बिग थिंग आई वुड टेल यू लेटर, बट इट इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग. तो जब ये नेशनल स्टेट में सिलेक्ट हुए, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल. देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग हैपेंड इन बिटवीन विच इज़ अ वेरी टची मोमेंट इन बिटवीन दिस. और लेट मी टेल यू, ये उस टाइम पे हो रहा है. दिस वॉज द न्यू ईयर टाइम. न्यू ईयर के दिन आई वॉज एट सूरत. जब लोग दुनिया पार्टी कर रही है, मैं एग्जीबिशन करके रिटर्न आ रहा हूँ घर पे. एंड लेट मी टेल यू, मैं ऐसा नहीं कि मज़ा मार दिया, मैंने सब कुछ छोड़ा भी नहीं है. मैं उसी टाइम पे हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए थे. और तो तब उसी टाइम पे क्या हुआ था कि सोसाइटी नई नहीं होती, तो पता है सब सूरत में नहीं, वडोदरा में नए नए घर पे शिफ्ट होते, पता है सब अक्की सोसाइटी में एक्साइटमेंट होते हैं कि ये इवेंट्स मनाएंगे, वो इवेंट्स मनाएंगे. तो सबको न्यू ईयर मनाना था. तो एक्चुअली बिफोर गोइंग देयर आई ऑल्सो वर्कड इन दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो एंड ऑल्सो कोरियोग्राफ्ड द होल इवेंट देयर. अच्छा, सोसाइटी में छः ग्रुप्स का डांस बनाना, खुद का अलग से डांस और गिटार पॉइंट बनाना, पुला बनाना, वो सब करने के बाद वो सब प्रिपेयर करके उनको प्रैक्टिस दे के आई एम गोइंग टू द सूरत. एंड देन कमिंग बैक इन द न्यू ईयर्स ईव लेट एट नाइट 8 or 9 o'clock. कमिंग बैक तुरंत आके ही आई एम जस्ट चेंजिंग माई सेल्फ, ऊपर जाके थोड़ा एक रिहर्सल छोटा मोटा करके कमिंग बैक डाउन एंड अगेन डूइंग द शो विच वॉज अ वंडरस. सो एवरीथिंग इज हैपनिंग दैट वे. वट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिफोर दिस आई वांट टू ऐड इज, जैसे मैं बता रहा था कि मेरे प्रिंसिपल के रिलेटिव की कंपनी थी. तो उनके वहाँ पे कुछ लोग काम करते थे, उनके एम्प्लॉइज़ थे, नेमली अंकित पटेल भैया, गौरव भैया, ईशान भैया, ये सब लोग थे. ये लोग वो लोग थे हु स्टार्टेड रोबोकॉन एट वीर, बड़ौदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट. तो उन लोग ने, तो वो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे. एंड माई प्रिंसिपल सेंट मी देयर कि भाई तुम लोग के बाद उनसे सीखने मिलेगा. सो आई वेंट देयर एंड आई लर्न अ लॉट. मतलब वहाँ द वेरी फर्स्ट टाइम आई अंडरस्टूड व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, कि कोड क्या है, कोड क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, व्हाट इज़ एन आईसी, व्हाट इज़ एन माइक्रो कंट्रोलर. दिस वाज स्टिल इन योर 11th का एंड का पार्ट ये चल रहा है. ये समझ में आ रहा है कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, व्हाट इज़ 80 मेगा 8 एंड 80 मेगा 16, पिन्स क्या होती है, पिन डायग्राम क्या होते हैं, और एक सर्किट बोर्ड. एक्चुअली उस टाइम तक मैं सर्किट बोर्ड का मतलब मैं क्या बनाता था पता है, जितना मुझे आता था, एक कार्डबोर्ड के ऊपर एज टू सोल्डर थिंग्स एंड वायर. मुझे सोल्डरिंग पता था, बट एक कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसा करके ऐसा कुछ बनाना था. बट दैट पॉइंट ऑफ आई अंडरस्टूड, ओहो इतना कुछ है, ये सर्किट है. एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि यार सीखने मिल रहा है. एंड वहाँ पे वो बिकॉज दे वर एम्प्लॉयज, दे हैड टू वर्क टू, राइट. और वो काफ़ी बड़ी कंपनी थी, तो उन लोगों को काम कॉन्स्टेंटली होता है. तो उनका जब भी फ्री टाइम होता था ना, तो वो लोग कॉलेज के लास्ट ईयर के प्रोजेक्ट्स में स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए उनसे प्रोजेक्ट बनवाते थे. ओके. एंड आई एम देयर एट विद माई स्कूल टाइम. ओके. सो मैं ऐसा प्रोजेक्ट लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे जो लोग ये सीखा रहे थे, वो लगा कई कॉलेज में है. नहीं सर, मैं तो स्कूल में हूँ. तो बोले तो क्या मावधू करे सर, मैं प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ. तो बोले सुबह अच्छे यार, तो स्कूल में थी करवा ला के उसे. तो इनिशियली वो मेरे को प्रेज नहीं करते थे, मतलब मुझे चाहिए भी नहीं था. आई वाज लाइक कि सर कैसे करेंगे. तो वो उस टाइम पे क्या करते थे कि मतलब कि चल अपन आने बनाई. इस टाइम पे उनको भी इंटरेस्ट आ गया, तो ही वाज लाइक कि चल अपना बनाई सुहाने. तो उनने मुझे क्या बोला कि आ बड़ी वस्तु ले आओ जाए मरी माता में जाके, ये सब चीज़ें ले आना और हम लोग उसके यहाँ पे बना देंगे. तो उस टाइम में मुझे क्या करते थे, लेबर वर्क देते थे. तो मुझे एक लिस्ट लेके भेजते थे कि सब चीज़ें ले आ. तो गलत चीज़ें भी आती थी, वापस एक्स्ट्रा पैसा तो गया, अब मरी माता वाला वापस तो लेगा नहीं, तो और पैसे डाल के उसको लेके आओ. इस पॉइंट के जस्ट पहले, क्योंकि स्टेट में सिलेक्ट होने वाले सिलेक्ट हो गए थे ना, तो जैसे कि 15 अगस्त ये सब होता है ना स्कूल में, तो हमारे GBE के चेयरमैन डॉक्टर खयालिया साहब आए थे. तो उन्होंने बोला कि अनंत को कुछ भी फाइनेंशियल या ये सब की हेल्प चाहिए होगी, पेटेंट वाइज ऐसे कुछ भी है, तो मैं करूँगा. चेयरमैन ऑफ GBE, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. तो लाइक क्या भाई क्या बात है, किधर से किधर. हाँ, और अखी असेंबली में अपनी तारीफ हो रही है, अपने लिए तालियां बज रही है. तो द स्टेटमेंट ऑफ द सर गॉट रियल कि भाई मैनिफेस्टेड यार. मैंने बोला किया है भाई, मतलब आई वाज गेटिंग वेरी हैप्पी. और कॉन्फिडेंस बढ़ता है मुझे बहुत अच्छा. मुझे स्टेज फियर तो कभी था ही नहीं, बट ऐसा था कि पर्सनल एक्सेप्टेंस नहीं था, बस वो एक चीज़ मुझे खटकती थी, जो यहाँ पे आगे सॉल्व हो रही थी. ऐसा स्टेज फियर तो था नहीं, क्योंकि इतने काम किए थे, डांसिंग किया हुआ है, सब किया. आई वंस ऑल्सो ऑडिशन फॉर DID. अच्छा, बहुत पहले. क्या आई डिड नॉट गेट सिलेक्टेड, बट किया था. क्या बात है यार. बढ़िया. तो ये सब करते वक्त तो मैंने उन लोग से काफ़ी सीखा. यहाँ पे एक चीज़ तो समझने वाली है ना, ऐसा कि जब नॉलेज मिल रही हो ना, तब हैफाजार्डनेस नहीं करने की.
क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि वो लोग को भी काम होते थे, तो मैं उनके साथ बात नहीं कर पाता था ऐसा। तो मैं उनको कुछ, तो उन लोग मेरे से क्या करते, लेबरस वर्क करवा रहे थे, मतलब कि ये ले आ, देख इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दे, वायर ले ले, इसको यहाँ से यहाँ कर, सोल्डर करने आता है तो ये सब कनेक्ट कर दे। एंड आई मेड अ वेरी शिटी काइंड ऑफ सर्किट, राइट, जिसमें वायर ही हर तरफ जा रहे हैं एंड इट डिडंट वर्क। और अल्टीमेटली एक लास्ट दिन आके उन्होंने आया ऐसा खट चार चीज़ें चेंज करी एंड ले काम हो गया ना ऐसा। टिल देन मैं थोड़ा बहुत कैड सीख गया था, 11th स्टैंडर्ड में कैड सीख गया था थोड़ा बहुत। आई मेड दिस एक्रेलिक लेज़र कटिंग के पार्ट्स, और मैंने उनको बता दिया, हमने लेज़र कटिंग करवा के उसका बॉडी बनवा लिया एक्रेलिक में से। एंड इवन दैट जिनसे मैं सीख रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स, वो खुद ऐसे हो गए कि यार क्या बॉडी बनाई है, बिकॉज इट वॉज शाइनी ब्लैक कलर बॉडी, उसके बारे में मैंने पेन स्ट्रैपिंग कर रखी है, ऐसा CB लिखा हुआ है, दैट वॉज क्लीनिंग रोबोट, ऐसे ही वॉज हैप्पी है क्या है यार अच्छा कर रहा है तो। एंड देन द सेंसर जो उन्होंने मुझे बताया था कि ये मॉड्यूल्स लगते हैं वहाँ पर, आई अंडरस्टूड व्हाट इज़ एन IR सेंसर, ये सब समझ में आया। बट उनका काम कैसा रहा पता है, मुझे बोले कि ये लिया, बट वो बताया नहीं ये चीज़ क्या है, ये क्यों लगा रहे हैं क्या नहीं। तो आई यूज्ड टू आस्क हिम, क्यूरियस, उनको बोला कि ये क्यों कर रहे हैं अपन, ये पिन को इसके साथ, ये पिन के साथ क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, क्यों ये पिन का नाम मोसी है, क्यों ये पिन का नाम मीसो है, ये सब का क्या मतलब है, हम ये 6 पिन बाहर क्यों निकालें। और कंप्यूटर में ऐसा तो क्या करते हैं कि जिस वजह से एक कोड एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर इन माय हेड कि भाई मैं यहाँ पे मेरी लैंग्वेज में कुछ चीज़ समझता हूँ, उसका एक एल्गोरिदम होता है, मैं एक कोडिंग की लैंग्वेज में वो कोड करता हूँ, देन आई ऐड अ केबल इन बिटवीन विद अ सर्किट इन बिटवीन एंड आई क्लिक अपलोड, समथिंग हैपेंस इन बिटवीन, और मेरी IC समझ जा रही है, एक इलेक्ट्रॉनिक जो एक फिजिकल थिंग है वो समझ जा रही है उसको करना क्या है। एंड व्हेन आई टर्न इट ऑन इट इज अवॉइडिंग ऑब्स्टिकल्स। क्या हुआ इस बीच, जादू। तो यार क्यूरियोसिटी वाज देयर, वेरी क्यूरियस, आई वाज लाइक क्या हो रहा है ये सब। तब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये IC, और ऊपर से ऐसा तो क्या, वो IC तो ऐसी तो क्या है जिसके अंदर ऐसा सब कुछ हो रहा है। अब ये सब सवाल मैं उनको पूछता था और वो जवाब नहीं देते थे, बोले खुद ढूंढ। दिस इज द वे आई वाज बीइंग टॉट। और वो लोग समझते उनको ऐसा सिखाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि तभी मैं अपने एफर्ट्स डालूंगा। तो तब मैं सीखा कि मैंने तब तक थोड़ा इंटरनेट का एक्सेस मिलना शुरू हुआ था, तो मैंने बोला चलो ढूंढते हैं। तब तक फ़ोन भी आ गया था, आई वाज लाइक चलो ढूंढते हैं। ऐसे सर्च आउट किया कि भाई हाँ ये IC होती है, उसका पिन डायग्राम, मतलब हर पिन का मतलब ये होता है। आई सर्च आउट ऑन माई सेल्फ जस्ट बिकॉज आई वॉज आस्क्ड फ्रॉम देम कि भाई तू खुद देख, ना समझ में फिर मेरे पास आना। नहीं तो वही बता देते, तो जितनी नॉलेज वो देते वो रख के हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। इन दिस होल प्रोसेस यू गॉट टू नो एवरीथिंग मेरे को सब कुछ पता है। वो फील्ड्स का मैंने सिंप्लीफिकेशन कर दिया अपने दिमाग में। द कंप्यूटर साइंस, द प्रोग्रामिंग स्टफ एंड द computer, the electronics part as up. So for electronics, for me it's like mix and match of pins, and this is how everything works. And program is like telling the thing what to do, communicating in their language. This is what it is all about.